Okay, so we are going to start with accounting equation today. And accounting equation हमने already पढ़ा हुआ है इसके बारे में. But accounting equation, it reflects the balance sheet equation, that is assets is equals to liability plus capital, right? That means in balance sheet, when we prepare balance sheet, looks something like this, right? So it is prepared on the last day of the year. So balance sheet as on 31st March 2021, right? So this is how the balance sheet will be prepared. On one side we write liability, and on the other side we write assets. So the liability and assets, so liability will include our internal liability as well as our external liability. Now internal liability means that we have to include capital first, and then all our long-term liabilities like long-term loan, right? Then we have to cover our current liabilities, right? So whatever that we have covered as of now, capital, फिर हमारी external liabilities, ये हमारी हो गई internal liability और ये सारी हो गई external liability. इसीलिए capital हम separately लिखते हैं यहाँ पर और liabilities को अलग लिखा जाता है, because this is representing your external obligation which you have to repay to the third party, and this is representing your internal obligation which has to be repaid to the owner in case the organization is getting closed down or it is getting sold off, right? Assets में हमारे पास आएंगे यहाँ पर fixed assets, investments, current assets. और एक जो आपने और assets पढ़े थे, अगर आपको याद हो, which is called fictitious assets, तो वो यहाँ आते हैं, right? So this is how our balance sheet is going to look, right? अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? Capital plus liability is equals to the total of asset, right? ये जो है, ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली मैच होनी चाहिए, बिकॉज द मैचिंग ऑफ बोथ द साइड्स विल रिफ्लेक्ट आवर अरिथमेटिक एक्यूरेसी. ओके, सो दिस इज क्लियर टू ऑल. अब यहाँ पे हमको अकाउंटिंग इक्वेशन जब करना है तो हमें ये समझना होगा that any equation that we are framing, it is going to include either of these side, right? मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट हो रही है, at the end of the transaction, like when we'll treat the transaction, तो जो न्यू इक्वेशन बनकर आएगी हमारे पास, वो इक्वेशन हमेशा टैली होनी चाहिए, राइट? और अगर टैली नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है या पोस्टिंग में एरर हुआ है. पोस्टिंग में एरर को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, और वो ये है कि हमको पता है कि ये और ये इक्वल है. If you remember, this entire side shows our credit side, right? Liability और capital का balance क्या होता है? It is when it is increasing, it has to be credited. Similarly, asset का side का total क्या होता है? It has to be shown on the debit side. That is, wherever the asset increases, it has to be debited, right? तो इसका मतलब हुआ कि debit side is equals to credit side. तो अगर debit और credit equal रहेगा हर transaction में, जब भी आप किसी भी transaction की posting करेंगे और आप देखेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप पोस्ट कर रहे हैं, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से मैच कर रहा है, तो जो भी आपकी न्यू इक्वेशन का आंसर आएगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट डूइंग एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, वो हमेशा मैच करेगा, राइट? सो दिस इज द स्मॉल ट्रिक, and you can correlate it with the rules of debit and credit that you have already covered, and the meaning of debit and credit that you have already covered, right? So everything that has been covered, if you can apply that knowledge over here, this accounting equation is a cakewalk, right? So let's do the transaction now. Okay, so I'm rubbing this off and we'll be starting off with the question now. So I'll be telling you how these questions are required to be recorded. Okay, so we will write assets on this side, then we'll have liability, plus capital. Okay, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसेट साइड पे जो सारी हमारे एसेट्स होते हैं, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो या करंट एसेट्स हो या इन्वेस्टमेंट्स हो, कोई भी एसेट हो, राइट, वो सब ट्रीट यहाँ पे किए जाएंगे. ओके,
लाइबिलिटी साइड में आपकी जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, चाहे फिर वो बैंक लोन हो या क्रेडिटर्स हो या बिल्स पेएबल हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो, कुछ भी होगा वो ट्रीट किया जाएगा आपकी लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल में किसका इफेक्ट पड़ेगा? कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल खुद का, राइट? जब कैपिटल हम लेकर आते हैं या फिर हम उससे कुछ विड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल ड्रॉइंग्स, राइट, ऑफ द प्रोपराइटर, उसका इफेक्ट पड़ेगा, या फिर किसी भी एक्सपेंस या लॉस का इफेक्ट पड़ेगा, या किसी भी इनकम या गेन का इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने रेंट पे किया, तो रेंट पे किया, व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन पेइंग रेंट? One is rent, which is an expense. The other one is cash, right? I hope you all remember this. So when we are paying rent, so rent will result, paying of rent will result into outflow of cash. That means the movement of cash towards the out, towards the out of the direction, out of the organization. तो जब आप रेंट पे करते हैं तो कैश का बैलेंस, नाउ कैश इज एन एसेट, राइट, तो कैश का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंस के पे करने की वजह से प्रॉफिट के बैलेंस पे क्या इफेक्ट होता है? मैंने आपको याद होगा, अगर आपको मैंने एक फॉर्मेट बताया था कैपिटल का, कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इफ यू हैव एनी, राइट, प्लस नेट प्रॉफिट और माइनस नेट लॉस माइनस ड्रॉइंग्स। I hope you all remember this, right? Similarly, अगर आपको इसी कैपिटल के ऊपर, ये कैपिटल बेसिकली एक बिजनेसमैन का दिया हुआ लोन होता है टू द बिजनेस, राइट? एंड वी हैव अंडरस्टूड दिस आफ्टर स्टडिंग द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये क्योंकि एक लोन है, इसके ऊपर बिजनेसमैन को इंटरेस्ट पे करता है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, राइट? तो अगर ये बिजनेसमैन को वो बिजनेस पे कर रहा है, तो कैपिटल में ये एडिशन है, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए ये उसकी इनकम है, मगर बिजनेस के लिए ये उसका एक्सपेंस होता है, इसीलिए एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे हम फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट होता है माइनस IOD, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, राइट? तो जो भी आपके ओनर ने विड्रॉ किया है फॉर हिज पर्सनल यूज, he is supposed to pay interest on the same, right? But IOD और IOC का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आएगा, तो हम बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे इसे। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिए। I hope you all are able to recall this format, whatever that we have covered. So anything which is going to, if we are paying any expense, so payment of expense is going to reduce the profit level. So capital में से आप minus करते हैं उसे, right? Similarly, if we are receiving something, let's say we are receiving interest. अब interest receive किया, so what are the two aspects which are involved in interest? One is cash, the other one is interest, right? So the cash which you are receiving is going to be added in the asset side, cash में, और जो आप पे receive कर रहे हैं interest के form में, that is an income, तो add कीजिए capital में भी. That means any expense which you are going to pay is going to reduce the profit, and so it is getting deducted from the capital. On the contrary, any income that you are receiving is going to contribute to the profit. That means it is going to be a surplus in the profit, an addition in the profit, and so we are going to add it in the capital. Okay, I hope this is clear to all. Question करते हैं, question में और बेहतर clarity आ जाएगी. Okay, so I'm rubbing this off also. Okay, so let's start with the first question that we have here. So there are the transactions which are there. So let me write it for you, and so that you can understand it in a better manner. Okay, the first transaction is Gopal started business with 75,000 as capital. Okay, so we can write the transaction here. Gopal started business. Okay, so let's have this space, use this space, transactions. So first transaction is Gopal started business. Okay, so Gopal जब business शुरू कर रहा है, so what is he doing? He is contributing a capital of 75,000. तो जब capital वो लेकर आ रहा है, तो हमारे capital जब business में लेकर आता है, तो क्या दो aspects involve होते हैं? Capital increase होता है, तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और किस फॉर्म में पैसा आ रहा है? द मनी इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ कैश, राइट? तो वो जो कैश है, कैश इज एन एसेट। तो एंट्री क्या पास की थी हमने इसकी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम कैश और कैपिटल।
कैपिटल तो लिखा हुआ है, कैश में लिखिए आप 75,000 और यहां भी ऐड कीजिए 75,000. There is no liability which is involved. So this is 75,000 and this is 75,000. So this is your new equation, right? So new equation is 75,000 on the debit side, that is on the asset side, and 75,000 on the liability side, right? That is in the account of capital. ये 75, ये 75, account match हो गया, tally हो गया आपका equation. I hope there are no doubts still here. Anybody having any doubt, please write it down, right? If you have got no doubt, let's move further. The second transaction is saying Gopal purchased furniture for cash 5,000. So let's write the new transaction. So new transaction is purchased furniture for cash. For how much rupees? He's purchasing furniture for cash rupees 5,000. अब यहाँ पर अगर आपको याद होगा, जो हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर इज एन एसेट, राइट? और फर्नीचर परचेज कर रहा है और कैश में पेमेंट हो रही है, इसका मतलब है कि एक एसेट क्रिएट हो रहा है और दूसरा एसेट जा रहा है, राइट? So both are going to be treated on the asset side. So we will write furniture here, right? And furniture के साथ हम लिखेंगे plus 5,000 because हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, और कैश में लिखिए -5,000. तो कैश का बैलेंस कितना रह गया? 75 minus 5 is 70,000 plus 5,000 of furniture. Liability side remains unaffected, तो इसको यहीं पे कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आइए. It is 75,000, right? So 70 plus 5, 75 is equals to 75, right? तो ये आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों आपके सही से टोटल हो रहे हैं as per the second equation also. So this is this is my new equation. Okay, let's move on to the third transaction that we have. So the third transaction that we have with us is Gopal purchased goods for cash rupees 20,000. Gopal purchased goods for cash. क्या याद आ रहा है? गुड्स किसको कहते हैं? गुड्स हम कहते हैं वो चीज को जो आपने परचेज की, जिसको आप बिजनेस में यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल, या जिसमें आप डील कर रहे हैं एज अ फिनिश गुड, राइट? सो बेसिकली गुड्स आर दोज मटेरियल in which the business is dealing into in the day-to-day course of its transaction, in the day-to-day course of its business. Okay, there is a request for the re-explanation of furniture part. Okay, फर्नीचर वाला देख लेते हैं फिर से. परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने फर्नीचर परचेज किया है जब कैश में, तो फर्नीचर इज कमिंग इन, राइट? रिमेंबर द जर्नल एंट्री, जब हम फर्नीचर परचेज करते थे तो फर्नीचर इज कमिंग इन, राइट? सो व्हाट इज द रूल दैट अप्लाइज? इट इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन. So furniture account debited, and what is going out? Credit what goes out. So what is going out? Cash is going out. So the entry would have been furniture account debited to cash. याद कीजिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसको भूलना नहीं है. और जब हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बढ़ रहा है? जो बढ़ रहा है वो है फर्नीचर. फर्नीचर इज एन एसेट, तो एसेट साइड पे एक नया एसेट क्रिएट कीजिए विच इज फर्नीचर. फर्नीचर में ऐड कीजिए 5,000 रुपीज, क्योंकि 5,000 रुपीज के फर्नीचर आ रहे हैं आपके पास, राइट? उसके अगेंस्ट आपने 5,000 पे किया है कैश में, तो कैश यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था. कितना कैश एग्जिस्ट कर रहा था? 75,000. माइनस कर दीजिए उसमें से 5,000, द बैलेंस इज 70,000 नाउ, राइट? सो दिस इज 70 plus 5. Total of asset side is 75. The total of liability side is already 75,000, right? So there is nothing which is changing on the liability side, neither in liability nor in capital. The only effect that is happening is on the asset side. Okay, I hope this is clear to you, Aditi and Chirag. Anybody else having any doubt, please ask. Okay, Saurabh का doubt है, मैम, why cash is not shown on capital side? Okay, cash जब आप लेकर आते हैं सौरभ, तो मुझे बताइए कि कैश आप लेकर आए, किस में लेकर आए? कैपिटल के फॉर्म में लेकर आए, राइट? तो कैश हमारे लिए क्या होता है? इफ यू रिमेंबर सौरभ, तो कैश आपको याद होगा कि कैश हमारे लिए एसेट होता है, और कैपिटल क्या होती है? कैपिटल हमारे लिए, कैपिटल की एंटिटी ऑल टुगेदर अगेन के अलग है. कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट? तो कैपिटल के फॉर्म में पैसा आया, यानी कि कैपिटल इंक्रीज किया. जब कैपिटल इंक्रीज करता है, इट हैज टू बी
credited, right? और कैपिटल को किस फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? कैश के फॉर्म में, इसीलिए कैश यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, राइट? एंड सेकेंडली why is cash not being shown on the capital side? तो पहले मैं आपको बता दूं कि कैश हमारा एसेट होता है, कैपिटल नहीं होता, राइट? कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए या कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए हम कैश के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी एसेट के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं. वी कैन इन्वेस्ट इन एनी वे, राइट? एंड दैट ऑल टुगेदर इज गोइंग टू कंप्राइज आवर कैपिटल. तो अगर जैसे यहाँ पे 75,000 डायरेक्टली कैश है, तो वो सिर्फ कैश के फॉर्म में कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया गया है. अगर आप कैश की जगह पे कुछ और भी कंट्रीब्यूट करते, जैसे मान लेते कोई एसेट भी लेकर आते, तो क्या एंट्री बनती? वो बनता आपका कैश अकाउंट डेबिटेड, एसेट अकाउंट डेबिटेड. यानी कि जैसे मान लीजिए बिल्डिंग लेकर आए आप, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, राइट? तो एसेट कैश होता 75,000, बिल्डिंग होती 1 लाख, तो टोटल कैपिटल कितना जाता? 1,75,000. तो आप यहाँ पे शो करते 1,75,000, राइट? आई होप सौरभ दिस इज क्लियर टू यू नाउ कि why is cash not being shown on the capital side? Because capital का nature अलग होता है. Cash is a real account, it is an asset, and capital is a personal account. Okay, चलिए आगे चलते हैं. सेकेंडली कैपिटल हमको लाइबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस को वो रीपे करना होता है. क्योंकि कैश जो बिजनेस में आया वो बिजनेस के लिए उसका असेट बनता है, लाइबिलिटी नहीं. ओके, आगे चलते हैं. गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000. ओके, गोपाल परचेज गुड्स मैंने अभी बताया आपको, मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि गुड्स जो है वो बिजनेस में हम जिस चीज में डील कर रहे होते हैं उसे कहा जाता है गुड्स. ओके, सो व्हेन वी आर परचेजिंग गुड्स एंड वी आर पेइंग इट इन कैश, राइट? तो हमारी कौन सी दो साइड इफेक्ट हो रही है? एक तो परचेजेस है, गुड्स है, परचेज कर रहे हैं. तो परचेजेस अगर आपको याद हो तो परचेजेस इज एन एक्सपेंस, राइट? मगर क्योंकि हम यहाँ पे परचेजेस नहीं लिखते हैं, हम उसे गुड्स ही लिखेंगे. सो गुड्स इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज आवर असेट, मतलब हम उसे ट्रीट करते हैं एज अ स्टॉक दैट वी आर मेंटेनिंग, राइट? जब आप जर्नल एंट्री में जाएंगे तब यही गुड्स, हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे परचेजेस या फिर सेल्स. ओके, आई विल अगेन रिसीव वन मोर डाउट. मैम व्हाट इफ कैपिटल इज इन फॉर्म ऑफ चेक? तो आप क्या एंट्री करेंगे अदिति? उस केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि उस केस में भी बैंक इफेक्ट होगा. तो बैंक हमारे लिए क्या होगा? हमारा असेट साइड पे शो किया जाएगा, क्योंकि वो बैंक किसको बिलोंग करता है? वो बैंक अकाउंट बिलोंग करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? तो वो भी हमारे एसेट साइड पे ही शो होगा. और बैंक के फॉर्म, बैंक चेक के फॉर्म में आप कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा जुड़ जाएगा जाकर, और कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू अदिति. ओके, तो मैं अभी ये जो ट्रांजैक्शन करवा रही हूँ, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, तो मैंने आपको क्या बताया कि परचेजेस हमारे लिए वैसे एक्सपेंस होते हैं, मगर जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की तो हम इसे परचेजेस नहीं लेते, वी टेक इट एज गुड्स ओनली, राइट? और गुड्स को जो यहाँ पे लिया जाता है वो लिया जाता है एज स्टॉक एंड विच इज एन एसेट, राइट? तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर गुड्स का ट्रीटमेंट एज अ स्टॉक होता है. तो जो ये ट्रीटमेंट है, जब गुड्स परचेज कर रहे हैं और आप कैश पे कर रहे हैं, so one asset is again coming in, the another asset is getting out, right? So the amount that you are paying for goods is 20,000. So write down the transaction first. Goods purchased for cash. अब कैश में आपने पेमेंट की, कितनी पेमेंट की है? You are paying 20,000 rupees. How much is remaining? Remaining is 50,000 for cash, right? और फर्नीचर हमारे पास वही है अभी भी, तो फर्नीचर आप एज इट इज ब्रॉट डाउन कर लीजिए, मतलब नीचे ले आइए, राइट? उसके बाद हमारे पास गुड्स, यहाँ पे गुड्स परचेज हुए हैं कितने के? 20,000 रुपए के, तो ऐड कर लीजिए और ये अमाउंट आपका हो गया 50 plus 5 plus 20. What is the total? The total is 75,000. ये साइड अभी भी इनफेक्टेड है, तो इसको एज इट इज ही आप ब्रॉट डाउन करेंगे, राइट? या ब्रॉट फॉरवर्ड भी कह सकते हैं इसे. So this is my new equation. So the new equation is 550,000 plus 5,000 of furniture plus 20,000 of goods is equals to 75,000 of capital. The total of debit and credit side is matching. Okay. Now let's move on to the next transaction. So the next transaction says Gopal purchased goods on credit for ₹16,000, right? Gopal purchased goods on credit
So now goods purchased on credit for ₹16,000. याद है ना आपको, जब हम क्रेडिट में परचेज किया करते थे तो कैश में पेमेंट नहीं होती है, right? So whenever that you're purchasing in credit, there is a party which is going to get originated, and what is the name of that party? That party is called creditor, right? और creditor किस क्या होता है, हमारा क्या नेचर है उसका? creditor is a liability. Okay, so let's treat it. Okay, so goods आपने परचेज किए हैं और कितने रुपए के? 16,000 रुपए के, right? 16,000 रुपीज की गुड्स आए हैं आपके पास, तो ऐड कर लेते हैं इसे. So this is 36,000 now, right? There is no change in furniture. Furniture को same as it is लिख दीजिए. There is no change in cash also now this time. So cash को भी 50,000 ऐसे ही brought forward करके ले आइए. Okay, what is the change now? Now this is the liability which is getting created over here and which is called creditor now. Creditor में आप add करेंगे कितने हजार? 16,000, right? So this is 16,000 which is an addition in the liability side plus no change in capital. So capital को as it is आप लेकर आइए नीचे. This is the new transaction. This is 50,000 of cash, 5,000 of furniture, 36,000 of goods. The total is 50 and 36, 53 and 3, 86, and this is 591, and this is also 91,000, right? So 91,000 ये आपके हुए debit side, 91,000 हुआ credit side. Okay, I have again received one more doubt. Let me just go through it. What will be the effect if we make an investment? Okay, investment क्या होता है आस्था? Investment होता है हमारा asset, right? तो अगर आप किसी investment को purchase करेंगे और cash में purchase करेंगे, so one asset is going to be added just like furniture, right? और उसका नाम हम लिखेंगे investment. तो investment add हो जाएगी asset side पर, और cash में payment कर रहे हैं अगर आप, तो cash आपका minus हो जाएगा, right? I hope आस्था बच्चे आपके doubt clear हो गया. Next is Khushi's doubt. Ma'am, can you please re-explain this transaction? Okay. Goods purchased on credit. This is what you are asking, Khushi? Okay. So let's go through this transaction again. Goods purchased on credit. Goods जब आप purchase करते हैं credit पे, what is the journal entry that we pass? If you remember it, Khushi, the transaction journal entry is purchasers account debited to creditors account. यानी कि payment की नहीं गई है, payment करनी बाकी है, तो हमारी liability create हो रही है. मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम गुड्स को एज अ स्टॉक लेकर चलते हैं, तो इट इज कंसिडर्ड अंडर द हेड असेट ओनली, राइट? तो आपके जब आपने गुड्स परचेज किए 16,000 के, तो वो गुड्स के हेड के नीचे ऐड हो गया 16,000 रुपए, राइट? और क्योंकि आपने उसकी पेमेंट नहीं की है, पिछले ट्रांजैक्शंस में हमने गुड्स की पेमेंट कैश में की थी, इसीलिए अगर आपको याद हो तो पिछला थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए, आपने गुड्स परचेज किए थे और गुड्स में एडिशन हुआ, कैश में पेमेंट की तो कैश माइनस हो गया. यहाँ पर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स में एडिशन हुआ, मगर कैश में पे नहीं कर रहे. कहाँ जा रहा है वो पैसा? वो आपका पैसा जो आपने नहीं पे किया, वो बन रही है आपकी लाइबिलिटी. लाइबिलिटी अंडर द हेड क्रेडिटर बाय द नेम ऑफ क्रेडिटर. तो क्रेडिटर क्रिएट कीजिए एंड राइट इट डाउन over there. So there is an addition in the liability side that now it is your financial obligation to pay the amount of 16,000 rupees to the creditor. 16,000 आपने ऐड किया, कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है, तो 75,000 एज इट इज आ गया. द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड एज ऑफ नाउ इज 91,000. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. अच्छे से समझ लीजिए इस ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि यही इसी तरह के बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगी. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपर्ली, देयर इज एनी डाउट, आई एम आस्किंग यू अगेन, write down your doubts in the chat box. Okay, let's go ahead and let's do the next transaction. So the next transaction is the fifth transaction that we have. So goods costing 12,000 sold on credit for 15,000. बहुत ध्यान से देखेंगे इस ट्रांजैक्शन को. यहाँ पे लिखा हुआ है goods costing 12,000. 12,000 sold for 15,000. Okay, and this is getting sold on credit. Okay, everybody please pay attention. Very important transaction. Okay, goods costing 12,000 sold for 15,000 on credit. यानी कि आप जब क्रेडिट में सेल्स करते हैं तो आपकी जो पार्टी क्रिएट होती है उसको क्या कहते हैं? जिन्होंने कहा डेटर्स वो सही है, और जिन्होंने कुछ नहीं कहा उनको पढ़ने की जरूरत है. वापस जाइए, फिर से पढ़िए, राइट? ओके, सो लेट्स डू इट. 12,000 की गुड्स
15,000 में आपने बेचे और आपने एक नई पार्टी क्रिएट की, क्योंकि ये क्रेडिट में बेचे गए हैं तो एक नया जो एंटिटी क्रिएट हो रही है उसको आप कहेंगे डेटर, राइट। अभी मेरे पास यहाँ पे जगह कम बची है तो मैं यहाँ पे सिर्फ डीआर लिखकर छोड़ रही हूँ, डेटर है ये, समझ लीजिएगा आप। ओके, अब आपने 12,000 के गुड्स बेचे तो सबसे पहले तो गुड्स में से माइनस कीजिए 12,000, राइट। गुड्स कितने के गए हैं? 12,000 रुपए के, तो 12,000 36 में से 12 माइनस किया तो कितना बचा? 2 and 4 24,000, राइट। अब गुड्स बचे मेरे पास 24,000 रुपीज के, बेचे कितने हैं आपने? आपने 12,000 के गुड्स बेचे 15,000 रुपए में, यानी कि डेटर्स जो एडिशन होगा यहाँ पर, जगह कम हो रही है थोड़ी सी यहाँ पर, मैं आपको छोटा छोटा लिख के दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ कि डेटर जो हमारे ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, वो ऐड हो रहे हैं 15,000 के, तो जो डेटर का बैलेंस आएगा वो 15,000 कैरी फॉरवर्ड होके आ जाएगा आपके पास, राइट। आपके पास गुड्स कम हुए 12,000 रुपए के, और डेटर ऐड हुए हैं आपके 15,000 रुपए के, और इसके अंदर क्योंकि 12,000 के गुड्स को आपने 15,000 में बेचा है, so there is a profit that you have generated in this transaction and that is to be recorded in the capital side. So capital में आप ऐड कीजिए 3,000 रुपए, क्योंकि वो आपकी इनकम है जो आप जनरेट कर रहे हैं, जो आपका प्रॉफिट है जो आप जनरेट कर रहे हैं बाय सेलिंग द गुड्स वर्थ रुपीज 12,000 इन 15,000 रुपीज, राइट। और अगर इसका कॉन्ट्ररी होता, मतलब 15,000 के गुड्स को अगर आपने 12,000 में बेच दिया होता तो क्या होता? यहाँ पे 3,000 रुपीज माइनस हो जाता। मैंने क्या बताया, कैपिटल किन चीजों से इफेक्ट होता है? कैपिटल इफेक्ट होता है आपके कैपिटल के एडिशन से, या फिर आपके ड्रॉइंग से, या फिर कोई भी अमाउंट जिसकी वजह से आपको इनकम हो रही हो, वो एडिशन होता है। और किसी भी वजह से अगर आपको एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट लेवल में रिडक्शन होता है, उससे जो लॉस हुआ, प्रॉफिट लेवल में रिडक्शन मतलब दो बेसिकली जो लॉस हुआ उसको आप माइनस करते हैं यहाँ से, राइट। सो अब हम वापस से इसको एक बार देख लेते हैं। देयर इज अ डाउट दैट आई हैव अगेन रिसीव्ड। ओके, सो लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस ट्रांजैक्शन वन मोर टाइम। यहाँ पे ट्रांजैक्शन में लिखा था कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सोल्ड फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। तो आपने क्रेडिट बेचा, मतलब आपने 12,000 के गुड्स बेचे 15,000 रुपए में। किसको बेचे? टू द डेटर, राइट। तो डेटर एक पार्टी क्रिएट की जाएगी एसेट साइड पर, यहाँ पर मैंने की है छोटी सी, आप देखिए, उसको मैंने 15,000 रुपए ऐड कर दिए ना, यानी कि अब डेटर से मुझे 15,000 रुपए रिसीव करने हैं, राइट। गुड्स कितने के बेचे गए हैं? 12,000 रुपए के, तो 36,000 में से 12,000 रुपीज माइनस कर दीजिए, द अमाउंट इज 24,000 व्हिच इज रिमेनिंग इन गुड्स, राइट। और कैपिटल में, बिकॉज यहाँ पर 12,000 के गुड्स को आपने बेचा 15,000 में, सो देयर इज अ प्रॉफिट दैट यू आर अर्निंग ऑफ 3,000 रुपीज, ऐड कीजिए कैपिटल में, सो द न्यू बैलेंस ऑफ कैपिटल इज 78,000। सो नाउ लेट्स चेक कैपिटल लायबिलिटी साइड में, देयर इज नो डाउट, आई मीन देयर इज नो चेंज, तो 16,000 एज इट इज आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, राइट। फर्नीचर में भी कोई बदलाव नहीं है, 5,000 एज इट इज आ जाएगा। देन कैश में भी कोई चेंज नहीं है, तो 50,000 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। सो इट इज 50,000 प्लस 5,000 प्लस, थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ इसे मैं, 24,000 प्लस 15,000 is equals to 16,000 plus 78,000, right? Please check the total. The total will match. So this is our new equation, right? Then we have got equation transaction number 6, which is the last transaction of this. So it is paid 1,000 rent. आप rent pay करेंगे, मैंने क्या बताया था, rent है तो expense हुआ, expense pay करने की वजह से cash कम होगा और दूसरा capital भी कम होगा, क्योंकि the payment of expense will lead to the reduction in the amount of profit. So rent pay किया है आपने, लिख लीजिए paid rent. How much has been paid as rent? Rent में पे किया है आपने 1,000 rupees, तो माइनस कर दीजिए यहाँ पे 1,000, the balance is 49,000 for cash now, right? और यहाँ से भी माइनस कर दीजिए 1,000 because the expense has been paid. So capital का new balance है आपका 77,000 plus ये 16,000 as it is रहा, right? बाकी को भी कैरी फॉरवर्ड करके ले आते हैं, plus 5,000 furniture plus 24,000 goods plus 15,000 debtors
is equals to 16,000 creditors and 77,000 capital, right? So if you will check the balance is going to be 93,000 on both the sides, right? So 93,000 is the total of both debit side as well as credit side, and that completes our question. So this is the final equation. यहाँ पे आप लिख देंगे final equation, and this is the answer, right? I hope this is clear to all. So I will be sending this board work to you. Please go through it once again, and I'll be sending you not less than 3 questions to do today. So everybody, whatever question that I'm sending you across, please do that question in your notebook, and also this question which I have solved for you over the board, right? So do it, use the same format, and everyone try to make column for each item, right? मैंने यहाँ पे columns नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है यहाँ पर बोर्ड पर, मगर आपके पास कॉपी में आप लैंडस्केप में यूज कीजिए अपने रजिस्टर को, और ये अकाउंटिंग इक्वेशंस की क्वेश्चन करेंगे आप, राइट? डोंट गो फॉर हॉरिजॉन्टल थिंग, क्योंकि अदरवाइज आपको क्या होगा कि जगह कम पड़ जाएगी. सो यूज द लैंडस्केप थिंग और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आई होप देयर आर नो डाउट्स लेफ्ट. So I'm sending you the board work which I have just written on the which we have solved on the board. Plus, I am also sending you across the assignment question. Please go through it. Please go through the lecture again if in case something is not clear, right? I hope that you will not face any problem. अभी जैसे मैंने रेंट को किया सॉल्व, तो रेंट पे मैंने क्या किया, कैश गया, कैश में से माइनस किया और कैपिटल में से भी माइनस किया. इसकी जगह पर अगर कोई इनकम होती, जैसे कमीशन रिसीव्ड होता, तो मैं क्या करती, कैश में एडिशन, कैपिटल में भी एडिशन, क्योंकि कमीशन इज आई एम रिसीविंग, तो कैश आ रहा है, ऐड कीजिए असेट साइड पर कैश में, और साथ में इनकम को रिसीव करने से मेरा प्रॉफिट का लेवल भी बढ़ेगा, इसकी वजह से उसे कैपिटल में भी ऐड कर दिया जाता है, राइट? आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. Anything which is not clear, we'll be taking up the doubts tomorrow. For today, this would be all. Please take care of yourself and please ensure that we are attending the classes regularly. Okay? Thank you, everybody.